डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था सल्फर डाइऑक्साइड्स का। उसका थोड़ा सा कंटेंट छूटा हुआ था, उसको कंटिन्यू करेंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, प्रिपरेशन बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है और उसके सपोर्ट में रिएक्शन बताया था। अब सल्फर डाइऑक्साइड में एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड में दो तरह के बॉन्ड हैं, एक SO है और एक वो है। वो पूछता है क्या दोनों बॉन्ड आपके कॉन्सेप्ट से इक्वल होना चाहिए। इज दिस S डबल बॉन्ड O एंड SO बॉन्ड्स आर इक्वल। तो इक्वल है तो उसका लिखेंगे S, नहीं है तो नो। यदि S है तो उसका कारण देना है। द रीजन इज वेरी सिंपल, दैट इज रेजोनेंस as shown in the above structure. Now, if we take the SO2, in SO2, this sulfur has an outer configuration 3s2 and 3p4. This is 3 and this one is 4. Now, this is a ground state configuration or outer shell configuration, outermost orbit count. 3s and 3p. Now we take the excited state. This sulfur and we write here lone pair, and there is excited 1. So this electron will excited from here and go to the p orbital, d orbital. 2, 3, 4, 5. This is 3d, and this is for your concept. Answer has already been given. Now in SO2 there are two sigma bond, and this is single bond and one lone pair of electron. So the hybridization will be, that is sp2. So this sp2 means this S and P. This is sp2 hybrid orbitals, right? So this oxygen is 2 oxygen. So these oxygen, here is the, so these two unpaired electrons, these are hybrid orbital, because the concept of hybridization, only orbitals takes part in the hybridization, electrons do not take part in the hybridization. And these hybrid orbital may have a lone pair of electron and the unpaired electron. Unpaired electron participate in bond formation. So these sp2 hybrid orbital with sulfur atom, this one. So this will form a 2 sigma bond, this sigma bond and this sigma bond by this oxygen atom. This is form a sigma bond. Form sigma bond with oxygen. Now this 3s is a lone pair, so there is a lone pair here. Now this structure is can be written as like this. So this is a sigma, this is a sigma. Now, if we take the concept of hybridization, this will have this is d p orbital, and this is, there is a one unpaired electron. Again, this will form a pi bond with oxygen. Form pi bond with oxygen, and this will also form a pi bond with oxygen. So what will happen? So this is p orbital, and this oxygen will have also a p orbital. If you will look at the configuration of oxygen, this is 1s2, 2s2 and 2p4. So there is this is 1, 2, 3 and this 4. So this is the unpaired electron in p orbital. So this oxygen, this p orbital will overlap with the p orbital of oxygen atom, and it will form a p pi bond. This is called p pi bond. Pi bond means this is p pi and this is a p pi. Now this sulfur in the hybridized state, one
unpaired electron is in the d orbital. Now this d orbital will form a pi bond with the oxygen atom, and oxygen have a p orbital, so it will form a d pi p pi bond. तो सिंपली हम लोग ऐसा नहीं जानते कि ये डी पाई पी पाई, दिस इज ए कॉन्सेप्ट कि इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो समझ में आया कि भाई ये सिग्मा है, ये लोन पेयर है, वी कैन राइट इट। तो आपको क्वेश्चन ये पूछता है इसमें दो तरह का बॉन्ड लेंथ है, ये पी पाई है और ये पी पाई डी पाई है, ये पी पाई है। ये दोनों जब डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के हैं तो भी इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो, इसका दोनों बॉन्ड इक्वल होते हैं। तो उसका कारण क्या है? ड्यू टू द रेजोनेंस। हाउ दीज टू बॉन्ड्स आर देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ, दिस इज पी पाई एंड दिस इज डी पाई एंड पी पाई। सो दिस एंड इट विल अंडरगो रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन एज, आपको अंतर नहीं दिखेगा बट इट विल शो द रेजोनेंस। सो दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस, इट विल शो द व्हाट इज, that is all the SO bond and S double O bond are equal. So question is asked, these bond and these bonds are pi equal, and what is the hybridization in SO2, that is sp2. In excited state S will have how many unpaired electron? 1 2 3 4. So sp2 hybridization means one lone pair, so there is a lone pair. Now this unpaired of sp2 hybrid orbital, sp2 is represented like this, any hybrid orbital having this unpaired electron, it will overlap with the 1s orbital and it will form a bond, so it will form a sigma bond. Similarly it will form a sigma bond like this sigma bond. Now this sigma bond is formed. Now what will happen after that? There are two unpaired electron are present still in the hybridized SO2, that is two unpaired electrons are present over sulfur atom. One is present in P and another one is present in the D. So they will form here overlap with oxygen atom. If it is P, and it will oxygen with overlap with oxygen, this will have also P, so it will form a p pi bond. That's why I have written here p pi bond. Now and here there is a another unpaired electron in the d orbital, and this d also combined with the p orbital of oxygen atom, so it will written as d pi and p pi bond, and it will undergo resonance. That's why these two bonds are very equal. Now the next and the last topic related to that of SO2, that is uses, self study. Some uses I narrated. So first it will act as a, that is in the preparation of sulfuric acid, or that is oleum H2S2O7. Let us we see the another property. It will act as a bleaching agent for bleaching, and this is for the anti-clore. What is the meaning in book? In your book it is written anti-clore, but we should understand the term of anti-clore. Anti-clore क्या है? क्लोरीन, एंटी बना अपोजिट, क्लोर बना क्लोरीन। यानी यदि क्लोरीन का ब्लीचिंग है कहीं तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? SO2 का प्रयोग करते हैं, राइट। ये सारे इसके एप्लीकेशन से है। तो SO2 का यूजेस आपका सेल्फ स्टडी में हुआ इतने एप्लीकेशंस के बाद। अब इसमें कहता है द ब्लीचिंग बाय SO2 इज टेम्पोररी। व्हाई? तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया यूजेस, क्या क्या यूजेज हुआ इसको आपने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, ओलियम बनाने में, एंटी-क्लोर में ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। अब हमारा आता है कि वाई ब्लीचिंग बाय SO2 इज टेम्पोररी। इसके द्वारा ब्लीचिंग टेम्पोररी क्यों होता है, जबकि क्लोरीन से पढ़ेंगे आगे तो परमानेंट होता है। तो हम लोग इसको देखें, SO2 plus H2O, then it will give SO3 plus twice H, colored, this is H, this will colorless, so it is temporary.
What is the conclusion? Because the bleaching is done by reduction, that's why it is temporary. Bleaching, in summary, bleaching done by reduction, so it is temporary. This is regarding SO2 is very important. How prepared, reducing properties, what happens when this one, and SO2 bond length are equal regarding that, and for that, and usage, there are some uses. Now we take another sulfuric acid is deleted, but you will have some knowledge for it. Oxy acids of sulfur. The heading is oxy acids of sulfur, right? See. Following are the oxy acids of sulfur. पहला है सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO3. इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये OH, ये OH, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया. इसको H2SO3 बोलेंगे. And because of the presence of two OH bond, the acid will react with base. That's why its basicity is 2. And why its basicity is 2? Due to the 2 oxygen. Basicity is equal to 2. Now the another acid, that is sulfuric acid. Sulfuric acid. So its formula is H2SO4, and it is represented as, this is O, this is O, this is OH, and this is OH. So this is H2SO4, and it is also the dibasic acid, because its basicity is 2. Similarly, basicity is 2. Right? Another is, that is peroxo disulfuric acid. Another is peroxo disulfuric acid. Peroxo disulfuric acid. ये कैसे बनता है? 2 सल्फ्यूरिक एसिड आप लीजिए और एक का OO बॉन्ड से जोड़ दीजिए, and this one, so this is H2 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is H2. ये peroxide bond है. This bond is called peroxide bond. This is called what? Peroxide bond. PROXID, peroxide bond. इसी peroxide bond का नाम, इसमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट जुटा हुआ है. If you will be H2SO4. Now H और H, this out of this OH and the OH of this group, like this. If it is this one OH, and this is OH. Now again you write, this is S, this is OH, O, and this one is OH, and this one is H, O, and this is H. So these are removed. Then it will give what? This is called peroxo disulfuric acid. Peroxo means peroxide bond is present. Here is peroxide bond is present. And disulfuric acid means two units of sulfuric acid takes part in the reactions, right? So it's a formula. Now its oxidation state, how we will calculate for peroxide. This is very important. पहले इसका भाई oxidation state क्या होगा? तो the oxidation state देखिए C. यदि हम नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे 2 into 1 plus 2 into x, प्लस साइड ऑक्सीजन को होता है -2 0, तो आपको आ जाएगा 16 में से 2 गया 8 हो गया, 2x बराबर 8 दूनी 16 और 2 गया 14. 16 -2 कर लें तो 14 हो गया, तो x बराबर 7 हो गया.
और सल्फर का ऑक्सीडेशन 7 आ रहा है, तो इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज सल्फर इज ए एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 और जिस ग्रुप का एलिमेंट है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ग्रुप हो सकता है। 7 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो क्या करेंगे, फॉर पेरोक्साइड वी कंसीडर, फॉर peroxide O is -1. Now here 2 into 1 plus 2 into x. How many oxygens are involved in peroxide bond? Just I have discussed in the Zoom classes. So this is 2 into -1. How many oxygens are left out of 8? 2 are involved in peroxide bond. How many are left? 6. So we would write here 6 and the normal oxidation state is 0. If you will calculate, that is this one and this one will cancel. So 2x is equal to 12. Therefore x is equal to 6. So the oxidation state of sulfur here, that will be +6. You will note it. And another one is another oxyacids. Peroxo, this is very monosulfuric acid. Monosulfuric acid. So its formula is, this is SO, this is OH, and this one is again OH. This is called H2SO5. H2SO5. So again here is peroxide bond. If you will calculate, keeping in mind the peroxide bond involved, one peroxide bond, 2 into 1 plus x plus 2 into -1. Out of 5, how many oxygens are involved in peroxide? 2. How many left? 3. So for 3 we take -2 is equal to 0. यानी पेरोक्साइड बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, तो पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं, इसीलिए, और ये 2 ऑक्सीजन है पेरोक्साइड का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिखा है। अब 5 में से 2 चले गए, 3 बचे, और ऑक्सीजन का जनरल रूल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेते हैं, इसीलिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी 6 ही आएगा। और एक ऑक्सीएसिड्स है, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो वर्ड फॉस्फोरिक एसिड नहीं बनाया था, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड अब आपको डिलीट कर दिया गया है, और ये है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है? पायरो का मतलब होता है हीट, यानी इसका बेसिक फंडा है कि देखिए 2 यूनिट आप लीजिए, 2 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड का आपने ले लिया और इसको हीट कर दीजिए, इसको हीट कर दीजिए, माइनस वाटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ से निकाल। अब जोड़ दीजिए तो दोनों को क्या बना? दिस इज द कंसेप्ट। स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ता है, स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीज़ें होती है, बुक में लिखा हुआ है, आपको कहेगा कोई रट लीजिए। ये भी डाइबेसिक एसिड है, तो इसका फार्मूला होगा H2S2O7। यही होगा, आप गिन लीजिए 2, 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके होंगे। यहाँ -1 नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। सो दीज आर द ऑक्सी एसिड्स। नाउ लेट मी टू सी द टाइम। No. So sulfuric acid is deleted, although I give some knowledge regarding sulfuric acid, although this group 16 is complete. Now oxygen is very simple. You will go through the book, self-study, how it is prepared, and so many reactions are there. Only you get confirmed on the reactions. Now sulfuric acid. Sulfuric acid, the topic is sulfuric acid. Sulfuric acid. Now it is deleted. ये reduced कर दिया गया है आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ। पहला है इसका प्रिपरेशन। आपने तो स्ट्रक्चर देख लिया, जो पार्ट
में डिलीट नहीं लिखा था, इसीलिए उसको कवर करना था। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जानना है, और इसमें कुछ नहीं। इन द फॉलोइंग स्टेज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग स्टेज। पहला होता है S प्लस O2, ये पाराइट बर्नर होते हैं जिसमें सल्फर को कंबशन किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा है कन्वर्शन ऑफ SO2 टू SO3, ये SO3 में बनेगा। कैसे बनेगा? SO2 यहीं पर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कैटलिस्ट है, और V2O5 ये टेम्परेचर लेंगे तो ये ट्वाइस ले ले तो ट्वाइस SO3 बन गया, यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तीसरा स्टेप होता है कन्वर्शन ऑफ SO3 टू ओलियम, OLEUM। कैसे होगा? SO3 इसमें डाइल्यूट H2SO4 से स्प्रे कर देंगे तो दैट इज स्प्रेइंग टावर होता है H2S2O7, अभी आपने देखा। एंड चौथा स्टेप्स होता है कन्वर्शन ऑफ ओलियम H2S2O7 टू H2SO4। ये आपका कैसे बनेगा? H2S2O7 प्लस H2O, तो ये बना देगा ट्वाइस H2SO4। यही कंसंट्रेटेड होगा 98%, के बाद इसको कंसंट्रेट कर देंगे। फिर से हम लोग देख लें प्रिंसिपल। H2SO4 जो है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें सल्फर को पहले कंबशन किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करते हैं। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बना तो उसमें एक क्या होता है, टावर होता है, स्प्रे टावर H2SO4 से स्प्रे करते हैं लिटिल अमाउंट से। आप कहेंगे सर H2SO4 बनाना है, आप H2SO4 दे देते हैं। हमको दूध से दही बनाना है तो हम दही थोड़ा डालते हैं। हमको यदि 1 kg दही बनाना है, हम कितना डालते हैं? 1 kg जोड़न डालते हैं क्या? नहीं डालते। तो वो क्या होता है, सीडिंग का काम करता है। तो H2SO4 वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, और एक स्प्रे टावर होता है वाटर का, तो यहाँ जैसे ही आएगा H2SO4 बन गया। तो H2SO4 की प्रॉपर्टीज आप जान लें कि ये हाईली विस्कस होंगे, राइट, ये कलरलेस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये भी चीज़ मैंने बताया था आपको और कहा था कि आप यहाँ नहीं समझेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। सो यू सी दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐसा लिखा था, ये लिखा था। अब यदि इसी को हम ऐसा लिख दें तो ऐसा थोड़ी कि स्ट्रक्चर बदल गया, वही चीज़ को लिखें। अब यहाँ पर क्या OH लिख दें, ये S लिख दें, ये OH लिखें, ये OH लिखें, ये वो लिखें। यहाँ H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पर इसको H कर दें तो लिखने में सुविधा हो। ये H बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, H बॉन्ड। कैसे हो गया, डॉटेड लाइन के द्वारा हुआ, तो इससे एसोसिएशन मॉलिक्यूल का हो जाता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसीलिए H2SO4 को हम लोग कहते हैं हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब H2SO4 ये क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स हैं। इसका रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब इसमें हम लोग ये जानते हैं, इसको चारिंग प्रॉपर्टीज होता है, ऑक्सीडाइज्ड करता है, और इसमें ये होता है। अब इसमें एक चीज़ होता है, एक पहले जो एक इक्वेशन था उस चीज़ को हम लोग जाने कि H2SO4 ये डिसोसिएट करता है वाटर में, क्या बना देता है, HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, और इसको हम लोग कहते हैं Ka1। अब फिर HSO4 माइनस ये वाटर में डिसोसिएट करता है, तो ये बना देता है SO4 माइनस एंड प्लस H3O प्लस, एंड जिसको कहता है Ka2। क्वेश्चन कहता है
Ka2 is very less than Ka1, why? यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। अब H2SO4 हटा दिया है, इसीलिए पूछेगा नहीं, लेकिन बट वी शुड नो इट। अब ये क्यों हो जाता है? क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है Ka, जब ये ज़्यादा होगा Ka, इसको क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये यदि बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सीधा लिखा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हमको यहाँ सिद्ध करना है क्या कि वह ज़्यादा हो रहा है घनमूल। इसका मतलब क्या है कि H2SO4 is quickly ionized in water and gives bisulfate ion. Quickly ionized in water gives bisulfate ion, which is not dissociated easily. यहाँ पर ये easily dissociate नहीं करता है, not give H plus ion again quickly. That's why Ka2 is less than that of Ka1. फिर से सुन लीजिए, H2SO4 quickly ionize करते हैं वाटर में, that's why it will give what? That is a stronger acid and its Ka value is क्या? higher. जब ये HSO4 ion बना, so they will not quickly ionize, so Ka2 is very less than that of Ka1, right? अब इसके कुछ रिएक्शंस हैं, उसको भी आप देख ले सकते हैं। जैसे ये चारिंग प्रॉपर्टीज है, जैसे सल्फ्यूरिक कॉम, ये हाईली कंसनट्रेटेड है, आप कागज़ पे रख दो, आप चीनी पे रख दो, आप लकड़ी पे रख दो, ठीक है? देखो ना, ये सीड बर्न्ट कभी होता है तो ये सारे चार कर जाएंगे। यानी यदि हमारा शुगर है, C12 है, H22 है, O11 है, इसमें हम H2SO4 को डाल दें तो ये सीधा बना देगा क्या? ये कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बन में। प्लस क्या हो जाएंगे? H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। C इसमें यानी H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 दैट इज C प्लस H2O, इसमें ये कन्वर्ट कर देंगे, राइट? इसीलिए इसको चारिंग प्रॉपर्टीज के नाम से बोला जाता है। आप इसको कहेंगे इक्वेशन लिखने में आपको कैसे परेशानी हो जाएगी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को जो हम लोग लिखते हैं, नाउ दिस इज रिमूव्ड हियर, कॉन्क दिस वन एंड यू कैन बैलेंस इट ओवर। अब देखिए, कहता है ये कॉपर पर कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन करा देगा तो क्या हो जाएगा? सल्फर पर कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? और कार्बन पर कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो ये बना देगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ये CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, कितने से हो रहा है? ट्वाइस यदि कर देंगे तो ट्वाइस यहाँ लगा दीजिएगा। सल्फर पर है तो SO2 प्लस H2O बना देगा, इससे इतना ही बनेंगे SO2 एंड दिस कार्बन पर CO2 प्लस SO2 एंड प्लस H2O। ये सारे रिएक्शन है, इसको बैलेंस आपको बैलेंस ये आपको करना है। तो हमारा ये ग्रुप 16 इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, राइट? नाउ यूजेस हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपसे लैब रिएजेंट के रूप में यूज होता है। इससे कई तरह के सल्फेट फर्टिलाइजर होते हैं, उसको बनाते हैं। मेटल के सरफेस को पॉलिश करने के लिए, चिकना बनाने के लिए पहले रूखड़ा बनाना पड़ता है, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग इसको काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ozone in the previous lecture, then sulfur dioxide, then sulfuric acid, although it is deleted, but oxy acids not clear, that's why I discussed this thing. Now the next group 17 will be discussed in next lecture. You must view the videos that helps you to understand the content very nicely. Thanks.